السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله المولانا العظيم. یہ سورۃ الانعام کی 68ویں آیت سے لے کر 70ویں آیت تک میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ آیتیں تلاوت کی. اس سے پہلے جو مضمون ہے اس کو ذرا آپ ذہن میں تازہ فرما لیں. وہ مضمون یہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر لوگ میری نافرمانی کریں گے تو مختلف طریقے سے میں ان کو عذاب کر سکتا ہوں، اس پر میں قادر ہوں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. آپ فرما دیجئے وہ اللہ تبارک تعالیٰ قدرت والا ہے اور اس بات پر وہ قادر ہے کہ وہ بھیجے تمہارے پر عذاب اوپر سے. طوفان آ گیا اور اوپر سے بجلی گری اور کیا کیا ہوائیں اٹھی زبردست، جیسے پچھلی امتوں میں ایسے واقعات آئے. او من تحت ارجلکم، یا زمین کے نیچے سے تمہیں عذاب کر لے. زلزلہ آیا، آتش فشان پہاڑ پھٹ گیا اور سیلاب آئے اور کیا کیا. دو عذاب ہو گئے، یا اوپر سے یا زمین سے. تیسرا عذاب آپس میں پھوٹ پڑ جائے. او یلبسکم شیعا، یا یہ کہ آپ مختلف فرقوں میں وہ آپ کو تقسیم کر لے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر چکھائے آپ میں سے بعض کے ذریعے سے بعض کو مزہ. انہیں لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. یہ بھی ایک مصیبت ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. انظر، آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں اپنے آیتوں کو تاکہ وہ لوگ بات کو سمجھیں اور نافرمانی چھوڑ دیں. اس کی تفصیل تو آ گئی کہ یہ فرقہ اور پارٹیاں جو ہے پھر آپس میں لڑنا یہ اللہ کا ایک عذاب ہے. اس میں یہ بھی آیا کہ یہاں اختلاف سے فقہاء کرام کا اختلاف مراد نہیں ہے. اس کی تفصیل آ گئی، اس کے وجوہات بھی آ گئے. اختلاف امت رحمت، وہ پھر یہ بحث بھی آئی تھی کہ 4 مسلک کس طرح سے وجود میں آئے، اس کے وجوہات کیا ہیں اور 4 ہی کیوں ہیں. وہ سب حضرات آپ کے ذہن میں ہوگا آپ حضرات کے. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہم نے بھیجا آپ کی طرف امت کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے. لیکن الٹا ہوا، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ کی قوم نے اس قرآن پاک کی تکذیب کی. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن پاک حق ہے اللہ کی جانب سے. یہ
नाजिल करदा कलाम है। कुल लस्तु अलैकुम बिवकील, आप फरमा दीजिए मैं आपके ऊपर जिम्मेदार बनाया गया नहीं हूँ कि अज़ाब भी मेरे हाथ में हो, नहीं मानेंगे तो ये होगा वो होगा, बिल्कुल नहीं। मेरा काम तो आप तक पहुँचाना है, ये आप फरमा दीजिए उन लोगों से। अब वो लोग ये कहते थे कि फिर अज़ाब क्यों नहीं आता है, जिस अज़ाब की आप हमको धमकी दे रहे हैं। तो उनको फरमा दीजिए लिकुल्लि नबय्युन मुस्तक़र्रुन व सौफ़ तअलमून, हर खबर का एक मुस्तक़र है, एक उसका जाए वक़ू है और एक उसका वक्त है। अपने अपने वक्त पर हर जो खबर है वो मौका जो उसका है वो उस वक्त ज़ाहिर हो जाएगा। अज़ाब का मौका है तो अज़ाब ज़ाहिर हो जाएगा अपने अपने वक्त पर। वसौफ़ तअलमून, और इस बात को आप अनकरीब जानेंगे। ये फरमाइश का बयान तो आ गया, यानी कि वो ये कहते थे वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुन्तुम सादिक़ीन, अगर आप सच्चे हैं कि क़यामत आएगी और वो होगा ये होगा तो क़यामत क्यों नहीं आती है। उसका जवाब दे दिया हर खबर का एक वक्त मुकर्रर है, मुस्तक़र है, और ये अनकरीब आपको मालूम हो जाएगा, उस वक्त सब लोग जानेंगे। आज यहाँ से अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं ये कुफ़ार की एक बुराई बयान हो रही है कि उनके अंदर तो बहुत सारी बुराइयाँ थी, ये एक ख़ास बुराई क्या, वो लोग कुरान पाक को सुनकर उसका मजाक उड़ाते थे, इस्तेहज़ा करते थे, और मुसलमान जहाँ मिले तो बस मजाक करना शुरू कर दिया और तमस्खुर करना शुरू कर दिया, कभी कुरान पाक की आयतों के ऊपर, कई दूसरी चीज़ों को, कभी उनके आमाल के ऊपर। अब अल्लाह तबारक ताला इन आयतों में मुसलमानों से फरमाते हैं कि उनकी मजलिसों से अलहदा रहना चाहिए, उनकी मजलिसों में मत बैठो, इसलिए कि जिस मजलिस में कुरान पाक का मजाक उड़ाया जाता हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उसके साथ इस्तेहज़ा किया जा रहा हो, तमस्खुर, तो उस मजलिस के ऊपर अजाब आने का अंदेशा है। अगर तुम वहीं बैठे रहे तो तुम उस अजाब में गिरफ़्तार हो जाओगे, इसलिए उनकी मजलिसों में नहीं रहना चाहिए। ये बहुत अहम मज़मून है। अल्लाह तबारक ने फरमाया इसमें मुसलमानों को तमाम ऐसी मजलिसों में शिरकत करने से रोक दिया गया जो मजलिसें खिलाफ शरीयत हों, दीन के ख़िलाफ़ हों, ख़ास तौर से जहाँ शरीयत और दीन का मजाक उड़ाया जाता हो। अब ये फरमाया जा रहा है क्या, वइज़ा रअयतल्लज़ीन यख़ूज़ून फ़ी आयातिना, बज़ाहिर तो खिताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन सुनाना किसको है, उम्मत को सुनाना है कि जब आप देखेंगे उन लोगों को यख़ूज़ून फ़ी आयातिना, जो हमारी आयत के अंदर झगड़ा करते हैं, मजाक करते हैं, बहस करते हैं। यख़ूज़ का लफ्ज़ आया है, ये खौज़ उनसे निकला है। खौज़ किससे कहते हैं, खौज़ के असल माने आते हैं पानी के अंदर घुसना और पानी के अंदर दाखिल होना, पानी के बीच में से गुज़रना। और बाद में ये लफ्ज़ जो है वो फजूल कामों के अंदर भी इस्तेमाल होने लगा, जहाँ बहस मुबाहिसे होते हों, खामखा के वो जो है वो बातें हो रही हों, उसके लिए भी ये लफ्ज़ आता है। और ये कुरान पाक में कई जगह है, जैसे वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम तो झगड़ा करने वालों के साथ झगड़ा करते थे, हंसी मजाक करने वालों के साथ हंसी मजाक करते थे। या इसी तरह से फ़ी ख़ौज़िहिम यलअबून, वो अपने खेल तमाशों में लगे हुए हैं, उसी में वो मशगूल हैं। तो बहरहाल इस तरह से ये फरमाया गया। और यहाँ यख़ूज़ून फ़ी आयातिन से मुराद ये है कि जो हमारी आयतों को सुनकर उसमें से ऐब निकालते हैं और फिर झगड़ा करते हैं मुसलमानों के साथ। तो जब आप उन लोगों को देखेंगे कि वो अल्लाह ताला की आयत में लहो लईब के एतबार से और तमस्खुर के एतबार से उसमें दाखिल होते हैं, उसको मशगला बनाते हैं और उसमें ऐब जोई करते हैं, इसलिए आप अपना रुख वहाँ से फेर लें और आप वहाँ से उठ के चले जाएं। खिताब तो अल्लाह के नबी सम का है बज़ाहिर, लेकिन सुनाना किसको है, उम्मत को सुनाना है। उसकी वजह यह है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर रहें जहाँ दीन का मजाक उड़ाया जाता हो। तो और नबुव्वत से पहले किसी ऐसी मजलिस में आपने कभी शिरकत नहीं की जो बाद में खिलाफ शरीयत बनने वाली मजलिस हो। मसलन कहीं लहो लईब की मजलिस है, कहीं शराब की मजलिस है, बिल्कुल आप उन मजलिसों से अलहदा रहते थे। अल्लाह तबारक ताला की गैबी हिफाजत आपके साथ थी। बहुत सारे वाक़यात किताब में लिखे हैं।
किसी ज़माने में साथियों ने उनको बड़ा इसरार किया फलां जगह चलें, वहाँ आज महफिल है गाने की और इसकी और उसकी, तो आपको वहाँ वो ज़बरदस्ती ले गए, चलिए आप भी आए। लेकिन वहाँ पहुँचते ही आपके ऊपर इतनी नींद तारी हुई, हालांकि तो बचपन का वाक़या है, इन्हें कोई ज़्यादा उम्र आपकी नहीं थी, उम्र मुबारक, तो वहाँ ऐसी नींद आपके ऊपर तारी हो गई कि वहाँ क्या हुआ उससे आप बिल्कुल क्या रहे, बेखबर रहे। और जब आप बेदार हो गए तो वहाँ तो मजलिस ख़त्म हो गई थी। अब साथियों ने कहा कि देखिए आज रात कैसे कैसे खाने हुए, क्या? हज़रत ने फरमाया मुझे कुछ भी पता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर एक नींद तारी कर दी ताकि जो है वो उस मजलिस में क्या हो रहा है आप उससे बिल्कुल क्या रहें, बेखबर रहें। तो वह कि बातिनी एतबार से बिल्कुल ही अलहदगी हो गई। हालांकि ये तो उस ज़माने का वाक़या है जब कोई वही नाजिल नहीं हुई थी, तो उसके बाद तो ये हो ही नहीं सकता ऐसी मजलिस में आप शिरकत कर लेते। लेकिन चूँकि बहुत अहम मसला था इसलिए ख़िताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया और सुनाना उम्मत को था। ये कुरान पाक का मिजाज है, जितने भी अहम वाक़यात और अहम चीज़ें, अहम मसाइल हैं, उसमें ज़्यादातर ख़िताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया जाता है। मसलन यतीमों पर आप जुल्म न करें, फ़ाम्मल यतीम फ़ला तक़हर। हर आदमी को मालूम है आपने किस यतीम पर जुल्म किया है, किसी पर भी नहीं। आप तो यतीमों की खबरगिरी करते थे और उनको पालते थे और सारी चीज़ें। वो अम्मस साइल फ़ला तनहर, आपने किसी को झड़का ही नहीं आज तक, कोई भी साइल किसी तरह का भी हो। लेकिन चूँकि मामला बहुत अहम था इसलिए ख़िताब अल्लाह के नबी सब को किया गया, इन मुखातब उनको बनाया गया और सुनाना किसको था, उम्मत को सुनाना था। इसलिए फरमाया व इज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर मुखातब मुराद है, जब आप देखेंगे उन लोगों को जो हमारी आयतों में ऐब निकालते हैं और उसको मजाक बनाते हैं और एक मशगला बनाते हैं, फ़अरिज़ अन्हुम, आप उनसे एराज़ कर लें, आप उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें, हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि और किसी बात में वो मशगूल हो जाए। यानी आगे आएगा, आगे अगर ज़रूरत की वजह से वहाँ जाना पड़ा, कोई अहम ज़रूरत थी, तो वहाँ जब देखा कि वहाँ अब ये काम होने शुरू हो गया और वहाँ से उठ के चलना चाहिए। मैं एक मरतबा एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, उनका इंतकाल हो गया, उनके साथ मैं भी था और भी चंद अफराद थे। एक जगह हम पहुँचे तो वहाँ और भी कुछ अवाम भी थे, कुछ उलमा भी थे। तो जब बात चल पड़ती है तो पता नहीं कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच जाते हैं। बस अभी एक जगह है, अभी दूसरी जगह पहुंच गए, बातों बातों में जैसे सोमू में बैठे हैं तो यहाँ से लेकर श्रीनगर तक मौजू बदलते रहते हैं, कोई खामोश बैठता नहीं। तो फ़ौरन ही वहाँ से ग़ीबत शुरू हो गई। तो उस बुज़ुर्ग ने, वहाँ से मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह थे, उन्होंने अपने खादिम से फरमाया चलो चलते हैं, यहाँ तो और बातें शुरू हो गई, यहाँ तो और बातें। यानी अभी तक तो बात ठीक चल रही थी, कोई मशवरे की बात थी या कोई मुलाकात की थी, लेकिन जब देखा कि अब मौजू जो है वो दूसरी तरफ को चलने लगा तो हज़रत ने फरमाया उनको कि चलो चलते हैं, यहाँ तो दूसरी बातें शुरू हो गई। मतलब तो यह है कि अब हमको इस मजलिस में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो यह ग़ीबत वाली मजलिस है। तो इस तरह से यह फरमाया कि अगर वहाँ आप जाएंगे और जब तक वो दूसरे किसी चीज़ में मशगूल न हो जाएं तो आप वहाँ न बैठें, एराज़ कर लें, चले जाएं, ये फरमाया। तो अगर पहले से ही मालूम है कि वहाँ ऐसा ही होता है तो फिर वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ शरीयत मजलिस है, महफिल है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे इबादत ही नाम रखा हो उसको, जैसे निकाह अभी तफसील आएगी उसकी, और मालूम है कि वहाँ सब खिलाफ शरीयत है तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। इसी तरह से अगर देखा जाता है कि वहाँ मजाक हो रहा है, सुन्नतों का मजाक, बेदीन नाम के मुसलमान सुन्नतों का और दीन का क्या उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो उस मजलिस में भी नहीं जाना चाहिए, ममानियत है। इसलिए कि इसके असरात पड़ जाते हैं, माहौल के असरात हैं। असल में इन आयतों में ये अहकामात हैं, मुसलमान को बुरे माहौल से अपने आप को बचाना ज़रूरी है, जैसे कि माहौल के असरात पड़ जाते हैं, दिल मुतासिर हो जाता है। अब अगर भूल हो गई, भूले से वहाँ गए थे तो भूले से वहाँ गए थे, यूँ ही याद आ जाए तो उठ के चले जाओ, उठ के ये फरमाया वइम्मा युंसियन्नका शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्रा। और अगर शैतान आपको भुला दे, इंसान ए मुखातब याद नहीं रहा, शैतान ने आपके ऊपर निशान तारी कर दिया, आप उस मजलिस में गए, फला तक़उद बाद ज़िक्रा,
देखो जब याद आ जाए तो अब न बैठना, अब याद आ गया हो यहाँ तो मुझे नहीं आना चाहिए था, तो फ़ौरन वहाँ से उठ के चले जाएं। आप याद आने के बाद जालिम कौम के पास न बैठे। इनको अल्लाह ने फरमाया जालिम है, क्या है? तो जो आयात के साथ मजाक करें, सुन्नतों के साथ मजाक करें, दीन का मजाक उड़ाएं, उनको अल्लाह ने फरमाया ये क्या है? जालिम है। इसलिए जालिमों के साथ नहीं रहना चाहिए। एक जगह फरमाया वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार, ए ईमान वालो जालिमों के साथ तो बिल्कुल हल्का फुल्का मैलान भी मत रखो। अगर ऐसा किया फतमस्सकुमुन्नार, तो जहन्नम की आग तुमको भी पकड़ लेगी, छोड़ेगी नहीं। जालिमों के साथ तुमने ऐसा ताल्लुक क्यों रखा? और यहाँ फरमाया वला तरकनू, रखना यरकनू के माने थे हल्का सा मैलान रखना, क्या जी? इसीलिए बाज़ हज़रात ने इसका तर्जमा रखना है मैलान रखना। और जालिमों के साथ मैलान भी मत रखो, वरना जो आफत उन पर आ जाएगी वो उन लोगों पर भी आ जाएगी जो उनके साथ मैलान रखते हैं मुसलमान होने के बावजूद। तो ये फरमाया कि याद आने पर उठ जाना चाहिए। इस आयत से मुफस्सिरीन किराम ने एक और भी असूल अख्ज़ किया है। वो असूल क्या है कि निस्यान और सहव यानी भूल जाना, शरीयत ने जो इसे मुआवजा जो उठा लिया है उसकी नज़ीर यह आयत भी मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाई। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं अगर आपको शैतान भूल में डाल दे और आप भूले से वहाँ बैठें, तो गोया कि अब आप भूले से वहाँ बैठे हुए हैं तो गुनाह नहीं है, लेकिन जो ही याद आ जाए अब क्या है, अब गुनाह है, उठ जाए वहाँ से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुफ़िया अन उम्मती अल ख़ता व निस्यान, रुफ़िया अन उम्मती अल ख़ता व निस्यान व मस्तुक्रिहु अलैहि, कि अल्लाह तबारक ताला ने 3 चीज़ें मेरी उम्मत से उठा रखी हैं। क्या क्या? एक ख़ता, क्या? और निस्यान, भूल। भूले से कोई काम हो गया, आप रोज़े से थे, आपने पानी पी लिया, भूल हो गई, अब आपका कोई मुआवजा नहीं है। अच्छा गलती से कोई बात हो गई, जानबूझकर आपने ऐसा नहीं किया, तो उस पर जो है वो पकड़ दकड़ नहीं। अलबत्ता कुछ दुनियाई अहकामात ऐसे हैं अगर भूले से भी हो जाए तो दूसरे का नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की तलाफी शरीयत ने बता दी है। इसी तरह से जिस काम पर किसी को ज़बरदस्ती की जाए, क्या की जाए? किसी जालिम ने पकड़ लिया और कोई काम उससे करवा दिया, ज़बरदस्ती उसके मुंह में शराब ठोंस दी, नहीं पियोगे तो फिर गोली मारेंगे, तो इस तरह से अगर उस पर इकरा और जबर किया गया तो फरमाया कि उस जबर का भी उस पर कोई गुनाह नहीं है। ऐसे ही किसी जालिम ने पकड़ के कलमे कुफर उससे कहलवाया तो उस पर भी उसकी पकड़ नहीं। जैसे रिवायतों में आता है कि एक सहाबी को कुफार ने पकड़ लिया तो लोहे की एक सलाई आग में गर्म करके जब वो लाल हो गई तो जो उसके पेशाब की जगह में उसको दाखिल कर लिया, छोटे पेशाब की जगह में, और उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। तो तसव्वुर से भी तो आदमी घबराता है। उससे कहा तुम कलमे कुफर कह लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर लो, इनकी नबूवत का। अब बहुत ज़्यादा वो अकेला था, इसलिए एक कुफर की बात उसने ज़बान से कह दी। फिर बहुत परेशान हो गए, क्या करें, उन्हें छोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सारा वाक़या सुनाया, तो उस पर एक आयत नाजिल हुई कि इल्ला मन उकरिहा नफ्सुहु व क़ल्बुहु मुतमइन्न बिल ईमान, जिसका दिल मुतमईन है, ईमान उसके अंदर है, लेकिन मजबूरी की वजह से ज़बरदस्ती उसकी ज़ुबान से कोई कलमे कुफर निकलवाया गया, उस पर कोई पकड़ नहीं। इसलिए ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़ता और निस्यान और ज़बरदस्ती जिससे की जाए अल्लाह तबारक से मुआवजा उठा लिया है। तो उसकी एक आयत वो ये भी है, इससे इस्तिदलाल किया है फ़ुक़हा किराम ने कि अगर शैतान तुमको भुला दे और आपको याद न रहे तो याद आने के बाद वहाँ न बैठे। मालूम कि याद आने के बाद अलग हुक्म है और जब भूल है तो अलग हुक्म। जैसे आप पानी पी रहे हैं, आप रोज़े से थे, याद नहीं था, आधा गिलास आप पी चुके थे, उसके बाद याद आ गई, उसके बाद तो क्या आप और आधा पी लेंगे? नहीं। देखो बादा ज़िक्रा, याद आने के बाद अब वो जो वो हुक्म नहीं, बदल जाएगा हुक्म। और अगर आपने उसके बाद एक ही घूंट पी लिया, जी अब तो हुक्म बदल जाएगा। जानबूझकर तुमने जो अपना रोज़ा तोड़ दिया तो उसमें तो फिर कज़ा तो क्या कफ़ारे का हुक्म लग जाएगा कि जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया। इसलिए एक के बजाय जो है आप 60 और 61 रोज़े रखने पड़ेंगे। अभी तक आधा गिलास पिया, कुछ भी नहीं, कज़ा भी नहीं, गुनाह भी नहीं।
तो ये आपने फरमाया। तो साहबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो किनारा रहेंगे, उनसे किनारा कशी इख्तियार करेंगे, लेकिन क्या करें, हम तो मस्जिद हराम में तो जाना ही पड़ता है, कोई ना कोई काम होता है, या कभी नमाज के लिए जाते हैं ऐसे इनफरादी तौर पर। ये लोग तो वहीं बैठे रहते हैं और इनका मशगला ये, जो ही हमको देखते हैं तो बस आवाज़ें कसनी शुरू हो जाती है और मजाक करते रहते हैं और सीटियाँ बजाते हैं। अब हम क्या करेंगे? तो मजबूरी के आलम में वहाँ से गुजरना पड़ता है, वहाँ ठहरना पड़ता है, कोई और काम होता है, किसी के यहाँ जाना है, तो ये लोग तो पीछे पड़ जाते हैं। उस पर अल्लाह तबारक ने फरमाया कि जो लोग खुद एहतियात करते हैं, एहतियात के बावजूद अगर ये लोग उसके इस तरह से उस मजलिस से गुजरना पड़े तो उस पर कोई हरज नहीं है। ये फरमाया, वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शै, उन लोगों पर कोई वो गुनाह नहीं है जो परहेजगार हैं और मोहतात रहते हैं। उन लोगों के जो वो खबासत बयान कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, उनका वबाल इनके ऊपर नहीं है, मुसलमानों के ऊपर नहीं है। मिन शैइन, कुछ भी नहीं। अलबत्ता अगर आपको वहाँ जाना है तो फिर भी खामोश न रहे, दीन की बात कह दें, दीन की बात। वलाकिन ज़िक्रा वलाकिन लअल्लहुम यत्तक़ून, उनको बता दीजिए कि ये दीन हक़ है, शायद वह डर जाएं और वो शायद अपने उससे बाज आ जाए। ये फरमाया। आगे फरमाया, वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवा, आप छोड़ दीजिए उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है। खेल और, यहाँ ज़र का लफ्ज़ आया है, मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं ज़र उस जगह इस्तेमाल होता है, वरना उतरुक भी आ सकता था, छोड़ दीजिए। यहाँ छोड़ने से मुराद है नाराज़ होकर छोड़ना। क्या? हाँ, इज़हार नाराज़गी भी हो और क्या हो, छोड़ दीजिए आप। वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम, उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने बनाया अपने दीन को लइब व लहव, लइब और, ये दो चीज़ें आ गई, लइब और लहव। ये कुरान पाक में बहुत जगह आया है, लइब और लहव। एक जगह अल्लाह तबारक ने फरमाया कि जो बेदीन इंसान होता है उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, उसकी तरतीब अल्लाह ताला ने फरमाया इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव, लोगो इस बात को जान लो, दीन के बगैर जो ज़िंदगी गुजारेगा वो ज़िंदगी कैसी होगी। एक तो होगी वो लइब, एक है लहव। व ज़ीनतुन, और ज़ीनत, टिप टाप, व तफाखुरुन बैनकुम, आपस में एक दूसरे को फ़ख्र, व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, और माल औलाद में कसरत के ऊपर फ़ख्र कर लेना। फिर आगे अल्लाह ताला ने मिसाल बयान फरमाई उन लोगों की, तो इसमें चंद चीज़ें अल्लाह तबारक ने बयान फरमाई। एक तो फरमाया सबसे पहले लइब, क्या, फिर लहव, फिर ज़ीनत। ये असल में मरहले हैं, ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं। ये अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाया। सूरह हदीद की आयत है, मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ लिया, उसका एक टुकड़ा पढ़ लिया। सबसे पहले फरमाया कि वो है लइब है। क्या है लइब? को मुफस्सिरीन ने लिखा है बेमकसद खेल। क्या? जैसे छोटा बच्चा जो है हाथ में वो झिना लेता है और छन छन करता रहता है, या कभी वो गेंद उठा ली और यहाँ से उधर मारता है और वहाँ से इधर मार लेता है। एक मरहला ज़िंदगी का ये है, ये वही बचपना है। उसके बाद जब ज़रा बड़ा हो गया तो लहव में दाखिल हो जाता है। लहव क्या होता है? लहव यह होता है कि जो एक खेल हो उसके मुकाबले में कभी वो दो साथी मिलकर भी खेलते हैं, तो बाज़ मरतबा उसमें कुछ मकसद भी होता है कि कुछ इनाम मिल जाए, जीते, हार जीत का तस्वुर भी उसमें होता है, तो वो आता है किसमें? लहव में आता है। उसके बाद तीसरा मरहला आता है जवानी का। उसमें क्या होता है? उसमें जो ज़ेब ज़ीनत है, क्या है, फैशन है और टिप टाप है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फरमाते हैं कि जब आगे आदमी चला जाता है तो हर पिछला वाला मरहला उसको हकीर नज़र आता है। तो जाहिर सी बात है, हम में से कोई आदमी वो झंझना कहिए, छिंझना कहिए, उसको हाथ में लेगा, छन छन कर लेगा तो खुद उसको हंसी आएगी, लोग भी हंसेंगे, क्या कर रहे हैं, हालांकि वो भी तो एक खेल है, लेकिन किसी ज़माने में वो उसको भी खेल रहा था। तो इस तरह फरमाया कि ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है, या तो लइब में गुजरती है, या तो लहव में गुजरती है, या तो अपने आप को बनाने और संवारने में बाल संवार रहे हैं और फैशन कर रहे हैं और जीनत कर रहे हैं, इसमें ज़िंदगी गुजर जाती है। ये तीसरा मरहला है। चौथा मरहला क्या होता है फिर? अब तो कैरियर बनाना है। क्या? आप फिक्र पड़ गई, अब तो कोई नौकरी भी मिलनी चाहिए, अब कोई कारोबार भी कर लेंगे, तो बस कारोबार की फिक्र लग गई। अब जब कारोबार वगैरह हो गया, अब उसके बाद कुछ बाल बच्चे भी बन गए, तो अब उसकी दौलत जमा करने में लग गए, किसमें? अब उसी में लग रहा है।
तो ये सारे मरहले आ गए, आखिरी मरहले में आंखें बंद हो जाती हैं और मर गया और चल दिया, कुछ भी नहीं। तो इसमें मैंने सिर्फ इशारा कर दिया है, वरना इस पर मुफ्ती तकी साहब ने एक मजमून लिखा है और बहुत ही गहरा मजमून वो है। तो हज़रत मुफ्ती शफी साहब अलैहि रहमत ने इस पर भी तफसील के साथ रोशनी डाली है कि जिस तरह से हर पहला मरहला दूसरे मरहले में पहुंचकर हकीर नज़र आता है, कि खेल तमाशा हकीर नज़र आ रहा है जब वो कैरियर बनाने में लग गया, और उसके बाद जब आगे तो माल दौलत में लग गया, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो मर गया दुनिया से, तो जब मर जाएगा तो ये सारी चीज़ें बेकार नज़र आएंगी। हाय अफसोस, मेरी ज़िंदगी कहाँ गुजारी, ज़िंदगी का एक मरहला तो इसमें गुजरा, लाइब में, फिर लहव में, फिर उसमें जीनत में, फिर माल जमा करने में मौत आ गई और मैं आखिरत के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इस तरह फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने कि जो लोग दीन को बनाते हैं लाइब और लहव, हाँ जी, ये बहुत अहम मसला, इसको सुन लीजिए आप गौर से। इसके दो माने लिखे हैं मुफस्सिरीन किराम ने, दोनों सही हैं। एक मतलब तो ये है कि मैंने जो दीन उनके पास भेजा था ये दीन था, क्या था, इससे उनकी ज़िंदगी बन जाती, दुनिया की भी और आखिरत की भी, और सुकून मिल जाता, मैं उनसे राज़ी हो जाता और हमेशा हमेशा की जन्नत उनको मिल जाती। लेकिन अफसोस तो यह है कि उन्होंने मेरे दीन के साथ मजाक करना शुरू कर दिया, जैसे एक तमाशों के साथ खेला जाता है, जैसे लहव लईब की चीज़ें हैं। उन्होंने कुरान पाक की आयतों को लहव लईब बनाया, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को क्या बना लिया, मजाक। जैसे मजाक कहीं किया जाता है, कहीं जो सब लोग बैठ के आपस में मजाक करते हैं और इस्तेहज़ा करते हैं और तमस्खुर करते हैं और इस तरह से कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा मेरी आयतों को उन्होंने लहव लईब बना लिया है। जैसे छोटे बच्चे तमाशों के साथ खेलते हैं और बेहकीकत उनके सामने होते हैं, उन्होंने दीन को बेहकीकत समझा और इस पर मजाक कर रहे हैं और मुसलमानों को मजाक उड़ा रहे हैं। यह फरमाया वह गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया। उन्हें मालूम है बस यही है, दुनिया है, खाना पीना है, मकान, और कुछ नहीं, उनको आखिरत की खबर नहीं। एक मतलब तो ये है। दूसरा मतलब कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं, वो बज़ाहिर तो अपने एतबार से दीन ही पर अमल करते हैं, लेकिन उनका दीन खुद तमाशा है, उनका दीन खुद तमाशा है। हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब फरमाते हैं, बेशुमार लोगों को इस आयत के समझने में बड़ी दुश्वारी आती थी कि दीन तमाशा कैसे होगा, दीन। तो उन्होंने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये फरमाया इस मुल्क के रहने वालों को कोई दुश्वारी नहीं है ये समझने में। क्यों? कहीं तो किसी के जो मजहबी त्यौहार होते हैं, या तो वहाँ मंगोले दागे जाते हैं, है ना, कहीं आतिशबाजी होती है, कहीं कोई दिन ऐसा होता है उसमें सिर्फ रंग फेंके जाते हैं, कहीं जो है उसमें तो किसी की शक्ल बना के उसमें आग लगा दी जाती है, कहीं तो तमाशे होते हैं, कहीं तो बैंड बाजे बज रहे हैं, और वो ये समझते हैं ये हमारा दीन है, ये हमारा मजहब है, मजहबी त्यौहार होते हैं। कहीं तो क्रिसमस के नाम पर जो है वो बोतलें पी जा रही हैं। तो हजरत ने फरमाया कि हमारे लिए समझना कोई दुश्वार नहीं है कि उनका दीन ही तमाशा है, उनका दीन ही लव लईब है। सब जाके बैठते हैं, कोई नाच रहा है, कोई घूम रहा है, कोई छलांगे मार रहा है, ये सब ये है। तो फरमाया कि उनका दीन ही है, उनका दीन ही। और इससे इबरत पकड़नी है मुसलमान को, क्या कि वो दीन के नाम पर, कि है तो दीन, है तो इबादत, उसमें वो जो अल्लाह लईब में मशगूल हो जाते हैं। ईद है, ईद की नमाज पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है, सदक़े फितर देना है तो खुशी का दिन, लेकिन अल्लाह ताला ने खुशी के दिन को भी हमारे लिए इबादत बना दिया। ये नहीं फरमाया कि ईद का दिन आएगा, लोगों तुम क्या कर लो, कूदो और नाचो और गाओ और क्या क्या करो, फरमाया नहीं, गुस्ल कर लो, सुन्नत के मुताबिक अपने आप को तैयार कर लो और मस्जिद ईदगाह पहुंच जाओ। क्या वहाँ क्या करना है, ईदगाह में क्या करना है भाई, ईदगाह में नमाज पढ़नी है। क्या आज खुशी का दिन है, इसलिए वहाँ खुतबा सुनेंगे आप, दीन की बात सुन लेंगे, और वहाँ जो आप क्या करेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, 2 रकअत नमाज, और अल्लाह ताला से दुआएं कर लेंगे, क्योंकि आज ईद का दिन है। क्या है, आज खुशी का दिन है। तो हमारी खुशी भी तो इबादत बन गई। अब बकरा ईद आ गई, क्या करना है, और मैं चलो तैयारी कर लो, गुस्ल कर लो, नाखून उठा लो, साफ कपड़े लगाओ, पहुंचो कहाँ, ईदगाह में। क्या करना है, आज ईद है, खुशी का दिन है, नमाज पढ़नी है। क्या पढ़नी है, उसके बाद क्या करना है, ईद है,
قربانی کر لو. کیا کر لو؟ قربانی کر لو، گوشت تقسیم کر لو، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، خود بھی کھا لو. یہ ہے ہماری عید.